بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے کچھ رشتہ دار سعودی عرب میں کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کا وہاں اپنا کاروبار تھا۔ مجھے جب بھی موقع ملتا میں ان سے یہی کہتا کہ خدا کے لیے میری اماں بیمار ہیں، بیوہ ہیں، آپ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ سعودی عرب کام کرنے کے لیے بلا لیں تاکہ میں اپنی ماں کا سہارا بن سکوں۔ یہ لوگ میرے تایا کے بیٹے تھے۔ ان دنوں میری عمر مشکل سے 17-18 سال ہوگی۔ تایا کا بڑا بیٹا تحسین ہمیشہ میری بات سنتا اور کہتا، تم ابھی چھوٹے ہو، ابھی تم وہیں پر پڑھائی کرو، اس کے بعد تمہارا کچھ دیکھیں گے۔ مگر پھر اماں کے بھرپور اصرار پر تحسین بھائی نے مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب بلا لیا۔ کہنے لگے یہاں تمہیں ہر قسم کا کام کرنا پڑے گا۔ میں نے تمہاری ماں کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں ان کو پریشانی نہ ہو، ورنہ تو ابھی تک تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنا۔ تمہیں یہاں پر بلانا ہی ایک مشکل کا کام تھا، اس لیے اب جو کام کہا جائے گا وہی کرو گے۔ اس کے بدلے میں تنخواہ تمہاری اماں کو میں ہر مہینے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا جی بہتر۔ پھر کچھ سوچ کر بولے، میں تمہیں ایک آدمی کے گھر بھیجوں گا، اس کی 4 بیویاں ہیں، بلکہ 5 ہیں۔ وہ کچھ مزید سوچ کر بولے تھے، ان 5 بیویوں کے کام کے لیے اسے ایک چھوٹے لڑکے کی ضرورت ہے جو بالغ نہ ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری عمر اور تمہارا قد کاٹ ایسا ہے کہ تمہیں وہ آرام سے رکھ لے گا، اچھے پیسے بھی دے گا۔ عورت کو یہ لوگ گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں رکھتے، ورنہ یہ کسی لڑکی کو رکھ لیتا۔ چھوٹے لڑکے یہاں کام کرتے نہیں ہیں، اور پاکستان سے بھی تمہاری عمر کا کوئی نہیں آتا۔ تم بہت کم لڑکوں میں سے ہو جو اتنی کم عمری میں پردیس آ گئے ہو۔ میں اپنے کزن کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا بس جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ پھر تحسین بھائی نے مجھے کہا، اس آدمی کی 5 بیویاں ہیں، لیکن وہاں پر تمہیں کچھ احتیاطیں کرنا ہی ظاہر کرو گے کہ تم پاکستان سے ہو، نہ ہی تم اردو بولو گے۔ میں حیران ہو گیا اور پریشان بھی۔ اردو نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ مجھے تو نہیں آتی عربی۔ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کون سا ہی پتہ چلتا ہے، انگریزی سے بالکل بے بہرا ہے۔ الٹی سیدھی انگریزی بول دینا، یہ ظاہر کرنا کہ تم کسی انگریز ملک کے پسماندہ گاؤں سے ہو۔ خبردار جو تم نے پاکستان کا نام لیا یا پاکستان کا نام لے بھی لو تو یہ ظاہر کرنا کہ تمہیں اردو نہیں آتی۔ میں یہ باتیں سن کر اور حیران تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آخر اس میں کیا حکمت تھی یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلی۔ فی الحال مجھے تحسین بھائی نے مختصر سامان کے ساتھ شیخ جلیل کے گھر بھیج دیا تھا۔ شیخ جلیل کا گھر بہت ہی بڑا تھا۔ میں اس گھر کو باہر سے دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ اس گھر کے تقریباً 14-15 کے قریب کمرے ہوں گے۔ 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر والی منزل بہت خوبصورت تھی، جبکہ نیچے والی منزل پر اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ تحسین بھائی کہنے لگے، میں نے بھی اس آدمی کے گھر میں کام کیا ہے، پر پھر اس نے مجھے کسی وجہ سے نکال دیا تھا۔ میں یہاں صرف اور صرف مینیجر کا کام کرتا تھا۔ اس گھر کے مسئلے بہت ہوتے ہیں، اس لیے اگر تم دل جمی سے کام کرو گے، ان مسئلوں کو نپٹاتے رہو گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ آدمی تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر دے گا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں پر امید ہو گیا تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں آ کر میری زندگی اور میری سوچ بدلنے والی ہے۔ خیر، تحسین بھائی نے مجھے اس آدمی سے بھی ملوایا تھا۔ شیخ جلیل نہایت خوش اخلاق قسم کا آدمی تھا، پر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا درد تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا جیسے وہ زمانے بھر کا ستایا ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی سی تھی۔ میں حیران تھا۔ جلیل بھائی کے بارے میں تو مجھے میرے تحسین بھائی نے یہ بتایا تھا کہ ان کی 5 بیویاں ہیں۔ 5 بیویوں کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کیسے ناخوش ہو سکتا ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال میں نے تحسین بھائی کو خدا حافظ کہا۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر اپنے بندے کے ساتھ واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عربی آدمی نے مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اسی کمرے میں کھڑا تھا۔ اس لڑکے سے کہا کہ اسے باہر لے جاؤ۔ وہ لڑکا مجھے جانا پہچانا سا لگا تھا، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، پھر مجھے بڑے رازداری والے انداز میں اوپر لے کر گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہی سرگوشی والے انداز میں بولا، مجھے پتہ ہے کہ تم پاکستانی ہو، میں بنگلہ دیشی ہوں، لیکن خدا کے لیے یہاں پر اس بات کا پرچار مت کرنا کہ تمہیں ہندی یا اردو سمجھ آتی ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جو تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گی۔
मैं हैरान था कि हर कोई मुझे यही बात क्यों कह रहा है। क्या शेख को किसी के पाकिस्तानी होने से मसला था? अगर था तो तहसीन भाई के साथ तो वो इस तरह पेश आया था जैसे कि वो इनके दोस्त हों। खैर, मुझे उस लड़के जिसका नाम पटेल था, मुझे सारा काम समझा दिया। उसने कहा था कि इस आदमी की 5 बीवियां हैं। उनको कभी ना कभी कोई ना कोई काम पड़ जाता है, इसीलिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत होती है या फिर घर बैठकर ही वो कोई चीज़ मंगवाती हैं। तुमने फ़ौरन ही उनको वही सब कुछ ला कर देना है जो वो मांगेंगी। और हाँ, किसी से कोई बात पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि शेख की 5 बीवियां कैसे हैं, क्योंकि ये तो मुसलमान है। मुसलमान बस 4 बीवियां ही रख सकता है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बात यह है कि जो नीचे वाले पोर्शन में सबसे कम उम्र लड़की रहती है, उसको शेख ने तलाक दे दी है। वो इनकी बीवी तो है, लेकिन तलाक याफ्ता है। शेख उसके पास नहीं जाता, सिर्फ अपनी 4 बीवियों के साथ रहता है। और बेहतर यही होगा तुम अपने काम से काम रखो। आज के बाद ये बात किसी से मत पूछना। मैं उसकी बातों पर अमल करते हुए वहाँ से निकल आया था। अब सवाल तो ये था कि मैं सारा दिन बस उनकी बीवियों के हुक्म का इंतज़ार करता रहूं, बदले में मुझे तनख्वाह कितना मिलना थी। ये सारी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थीं। तभी मुझे अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आई। मैं बाहर बैठा था, अंदर औरत की चीखने की आवाज़ सुनकर कमरे की तरफ दौड़ पड़ा था। मैंने देखा अंदर एक औरत बुरी तरह चीज़ें तोड़ फोड़ रही थी। वो जवान लगती थी, उसकी उम्र मुश्किल से 27 या 28 साल होगी, जबकि वही शेख जो थोड़ी देर पहले मुझे कमरे में हिदायत देकर गया था, वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। लड़की बुरी तरह रो रही थी, जबकि वो अरबी आदमी बड़ी ही फिक्रमंदी में उसे चुप करवाता तो कभी नीचे बिठाता, कहता कि मेरी बात तो सुनो। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था, लेकिन वो लड़की कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। मैं डर गया कि कहीं अरबी की बातें छुप कर सुनने से मुझे ये नौकरी से ना निकाल दे। फ़ौरन ही वहाँ से वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। 2 मिनट गुजरे होंगे, खटाक से दरवाज़ा खुला। वो औरत अपनी चीज़ें समेटती हुई वहाँ से बाहर जाने लगी। अरबी उसके पीछे पीछे दौड़ा। मैंने अपनी नज़रें झुका ली थीं, पर उस लड़की ने उस आदमी की कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से भागती हुई चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगता था कि वो बहुत बड़े कर्ब में मुब्तला है। वो अरबी जो कि उसे पहले रोकने की कोशिश कर रहा था, उसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह माफ़ी। मुझे उसकी बातों से इतना समझ आ गया था कि वो बहुत शर्मिंदा है अपनी किसी हरकत से और उसे दोहराना भी नहीं चाहता, मगर लाशऊरी तौर पर वो ऐसा ही करता होगा, तभी तो अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा था। हाल मैं चुप रहा था। मैं अपने नए हुक्म का मुंतज़िर था कि वो मेरे पास आया और मुझसे कुछ अजीबो-गरीब से अंदाज में बातें करने लगा। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। तभी उसने एक लड़के को आवाज़ दी। ये वही लड़का था जिसने मुझे इस अरबी के बारे में मुख्तसर मालूमात दी थीं। वो पास आ गया। उसने अरबी से कोई बात कही। अरबी ने उसे कुछ समझाया और फिर उस लड़के ने मुझे जो कुछ बताया, वो तो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि वो अरबी मुझसे ये कह रहा था कि तुम मेरी एक बीवी से शादी कर लो। मुझे लगा जैसे ये मुझे आज़मा रहा हो, ताकि मैं उसका वफ़ादार हूँ या नहीं ये साबित हो सके। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं शेख की बीवियों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दें। मेरी बात सुनकर शेख समझ गया कि मैं उसकी इस पेशकश से खौफज़दा हो गया हूँ। कहने लगा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ आज़माने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अपनी एक बीवी से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, मतलब निकाह करवाना चाहता हूँ। वो अरबी बहुत परेशान लग रहा था। उसकी बातों से भी महसूस होता था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम है। खैर, मैंने जाकर ये बात अपने तहसीन भाई को बता दी। तहसीन भाई भी इसी घर में आ गए थे। अरबी ने उनको भी बहुत बातें समझाई थीं। तहसीन भाई मुतमईन हो गए, कहने लगे कि तुम्हारे लिए ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा मौका होगा। तुम शेख की उस छोटी बीवी से शादी कर लो जिसने शेख से तलाक ले ली है या फिर शेख ने उसको दे दी है। उसके बाद वो तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैं तो इस घर में कठपुतली सा था। मैंने कहा, जैसा मेरे मालिक का हुक्म होगा मैं वैसा ही करूँगा।
यूँ मेरे निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। तारीख क्या थी? परसों मेरा निकाह होना करार पाया था, जबकि वो लड़की पाकिस्तान, उसका नाम सबा था। ये मालूमात मुझ तक आ चुकी थीं। मैं ये नहीं समझ पाया था कि आखिर सबा के साथ शादी करने का मुझे क्यों कहा जा रहा है, जबकि ये शेख की वो बीवी है जिसको वो तलाक दे चुका है। मुझसे दोबारा शादी करवा के शायद वो अपनी बीवी के लिए इजाला करना चाहता होगा। बहरहाल परसों का दिन तो आना ही था। मेरी निकाह सबा के साथ पढ़ा दिया गया। सबा ने रोते रोते निकाह के लिए हाँ कही थी और निकाह होते ही मुझे और सबा को एक अलग कमरे में भेज दिया गया था। ये कमरा अच्छी तरह सजाया गया था। इसमें रेशम के बिस्तर थे और नरम गरम ऐसे बिस्तर जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। मखमली पर्दे, इन पर्दों को देखकर इस घर के इमारत का अंदाज़ा होता था। मैं चुपचाप बैठा वो पर्दे और ये कमरे ही देख रहा था कि सबा रोती हुई मेरे पास आई और बोली, अब तुम भी मुझे तलाक दे दोगे, ये बात मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे नसीब में बस तलाक ही लिखी है। मैं उसको नहीं था, क्योंकि पहले ही जान चुका था कि वो एक पाकिस्तानी है। वो मुझसे मुख्तलिफ बातें करने लगी, मगर उसके चेहरे पर दर्द साफ लिखा था। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई हो? और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों करवाई गई है? मेरी ये बात सुनकर सबा मज़ीद रोने लगी। अच्छा रो नहीं, मैंने उसका हाथ थाम लिया। वैसे भी अब तो तुम्हारा मेरे साथ निकाह हो गया है। अगर तुम दुखी हो तो तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं एक ख्याल रखने वाला, अच्छा और माकूल इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ हंस दी और बोली, तुम्हारे साथ मेरा निकाह आर्जी है। तुम तो बड़े ही मासूम और सीधे साधे लड़के हो। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा निकाह मुझसे करवाया क्यों गया है। तुम फिलहाल इस शादी की खुशी में खुश हो। तुम ये नहीं जानते कि मेरी क्या कहानी है। मेरी उम्र देखो, मुझ पर गुजरे दर्द देखो, तो तुम खुद ही जान जाओगे कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कहती हूँ। ये कहकर वो दोबारा रोने लगी। तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ, फिर मैं मसले का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तुम देख लेना, तुम्हें मैं मायूस नहीं रखूँगा। तुम अगर इतनी ही दुखी हो, उस दुख का कोई हल भी तो अल्लाह ने रखा होगा। ये तो है। वो यकदम खुश हो गई थी। चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम समझ जाओगे कि शेख की हर बीवी उसके कमरे से आने के बाद रोती क्यों है और क्यों उसके साथ कोई भी औरत बस नहीं पाती। उसके साथ अब तक 30 औरतों की शादी हो चुकी है। क्या तुम ये सोच भी सकते हो 30 शादियों पर खर्चा कितना आता है और वो लड़कियां ढूंढने में वक्त कितना लगता है? ये कहकर वो हंसने लगी। हाँ, बहुत ज़्यादा वक्त लगा है इसे, और अब इबरत आई है। अब ये सबक सीख गया है कि इसे क्या करना है। इसीलिए तो इसने तुम्हारी शादी मुझसे कर मत भिजवाओ, मुझे पूरी बात बताओ। मैंने बेजारी से कहा। मेरी उम्र उन दिनों सिर्फ और सिर्फ 13 साल थी, जब मैं अपने स्कूल की सबसे होनहार तलबा हुआ करती थी। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, पर मैं ये नहीं जानती थी ज़िंदगी का ये हसीन ख्वाब बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। इन दिनों हमारे स्कूल में फ़ंक्शन हो रहे थे। मुझ जैसी एक आम गरीब मज़दूर की बेटी को हिस्सा लेने का मौका मिला, तो मैंने अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखाई और लोगों को मुतासिर कर दिया। मैं बहुत खुश शक्ल थी। हम लोग एक बड़ी तकरीब में गए थे, जहाँ मैंने डांस स्किट पेश किया। उस डांस स्किट ने मुझे बहुत मकबूल बना दिया था। काफ़ी सारे लोग मुझे जानने और पहचानने लगे थे। मैं बेपनाह हसीन थी कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। स्कूल प्रिंसिपल ने भी जब मेरा ये स्किट देखा, तो इन्होंने मुझे अपने स्कूल के सबसे टॉप बच्चों में रख लिया। अब जब भी कोई तस्वीर खिंचवाना होती, मैं ही आगे जाती थी। मेरी तस्वीर स्कूल के मैगज़ीन पर छपती। करते करते मैं अखबारों में आने लगी थी, पर मैं ये नहीं जानती थी मेरी ये शोहरत एक दिन मेरी कातिल बन जाएगी। मैं अपने घर में थी जब एक दिन अब्बा के पास एक आदमी आया। उसके पास 2 औरतें भी थीं। कहने लगे कि हम आपकी बेटी का इंटरव्यू करने आए हैं, साथ ही एक पेशकश भी दे रहे हैं। अब्बा मेरे मज़दूर और लालची आदमी थे। लालची नहीं कहो, ये कहो कि हालात के सताए हुए थे। जब अब्बा ने इन लोगों की इतनी बड़ी पेशकश सुनी, उनका मुंह भी खुले का खुला रह गया। दरअसल ये लोग अब्बा से कहने आए थे कि वो उनकी बेटी को सऊदी अरब लेकर जाएंगे, खूब पढ़ाई लिखाएंगे और साथ ही नौकरी भी करवाएंगे।
तनख्वाह हर महीने बाकायदगी से अब्बा को भेजेंगे। अब्बा ने शायद ऐसी बात पहली दफ़े सुनी थी। बैठे बिठाए उन्हें करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। अब्बा तो खुशी से 7 औरतें भी थीं, इसलिए इन लोगों पर यकीन कर लिया। पर हम क्या जानते थे कि ये लोग तो इंसानों के रूप में भेड़िए हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों ने बाकी की कार्रवाई कैसे मुकम्मल की, लेकिन मुख्तसर से कागजात बनाने के बाद मुझे हवाई जहाज़ में बिठा दिया गया और फिर मेरी किस्मत ने उसी दिन पलटा खाया। मुझे जब यहाँ लाया गया, मैं पूरा रास्ता जहाज़ में यही सोचती रही कि मैं आगे जाकर बहुत बड़े स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी। पर जब मुझे यहाँ लाया गया, एयरपोर्ट पर मुझे एक लड़की ने इस्तकबाल भी किया और मेरी खूब पूछताछ की गई थी। वो लड़की मुझे एक बहुत खूबसूरत बड़े सफ़ेद रंग के होटल में ले गई। उसके बाहर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। मैं नहीं समझ पाई थी कि ये क्या है। वो लड़की मुझे ऐसे होटल में ले गई जहाँ पर माहौल बहुत ही अजीब था। खूबसूरती, रंग, रोशनियाँ और लड़कियाँ जिन्होंने मुख्तसर कपड़े पहन रखे थे। खुदा जाने ये कौन सा सऊदी अरब था। हमने तो यही सुन रखा था कि वो अल्लाह की पाक ज़मीन है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जैसा हमारे मुल्क में होता है। पर मैं ये देखकर तो हैरान थी कि यहाँ अय्याशी का एक भरपूर अड्डा मौजूद था। लड़कियों ने मुख्तसर कपड़े पहन रखे थे। मैं सोचने लगी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। ये जगह तो हम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। ना ही यहाँ कोई स्कूल की लड़की नज़र आ रही थी। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजारती हुई वो लड़की मुझे एक बड़े से हॉल में ले गई जहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर जैसी जगह थी। उस ब्यूटी पार्लर में मेरे बाल बनाए गए, मुझे उम्दा अच्छे कपड़े पहनाए गए। अब मैं किसी शहजादी की तरह लग रही थी। मुझे अपने आप पर भी रश्क आ रहा था। मुझे सुर्ख रंग की पोशाक पहनाई गई। मेरे सर पर एक टोपी रखकर मुझे ऐसे तैयार किया गया जैसे तुम फिल्मों और ड्रामों में शहजादियों को देखते हो। मैं बेपनाह खूबसूरत लग रही थी और ड्रामों में शहजादियों को देखते हो। मैं बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। दुनिया की सबसे हसीन लड़की उस वक्त मैं ही मालूम हो रही थी। फिर मुझे एक और कमरे में ले जाया गया। ये देखकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि वहाँ पर सोफ़े पर एक आदमी बराजमान था जिसने अपने बाजू दोनों तरफ फैला रखे थे। मुझे देखते ही उसकी आंखों में हवस उभर आई। और फिर क्या था, उसने मुझे बर्बाद करना अपना हक समझा। वो मुझे बहुत दूर से बुक करके लाया था। ये सारा खेल, सारा जाल उसी ने ही तो बिछाया था। एक दिन अखबार में उसे मेरी तस्वीर देखकर मैं पसंद आ गई। बस वहीं से उसने मुझे बर्बाद करने की ठान ली। जब पता करवाया तो पता चला मेरे माँ बाप भी गरीब से हैं। फिर क्या था, उनको लालच दिया और हफ्तों दिनों में मुझे यहाँ लेकर आ गया। अब मैं उसके सामने सजी सजाई रेशम की गठरी की तरह पेश की जा रही थी। मैं बहुत रोई थी, चीखी चिल्लाई थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। इस सब के बदले में मेरे अम्मा अब्बा को पैसे भेजे जाते रहे। वो खुश थे और जब भी मौका मिलता मेरी अच्छी तस्वीरें बनाकर उन्हें भेज देते, जिससे लगता कि मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ। फिर कुछ दिन गुजरे, उस अरबी ने मुझसे शादी कर ली। कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखूँगा। लेकिन मुझे उसकी क्या समझ आती। वो तो अरबी में बात करता था, मैं उर्दू बोलती और समझती थी। एक दिन उसने ऐसा किया जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझसे कोई बात कह रहा था, मुझे समझ नहीं आई तो मुझे तलाक दे दी। तलाक देकर मुझे इस काल कोठरी में फेंक दिया। फिर मुझ पर जुल्म करने लगा, इतने जुल्म कि जो मैंने ज़िंदगी भर नहीं सहे थे। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हो गई। लगने लगा जैसे मौत ही मुझे इस सारे गम से निजात दिला पाएगी। मैं दिन रात नमाज़ पढ़ती, अल्लाह से दुआ करती थी। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मेरी ये कैद कब आदमी को वो सज़ा दी कि वो ज़िंदगी भर के लिए उजड़ गया। उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई, कोई औरत इसके पास नहीं रहती। इसे गुस्सा आता है, इसे गुस्से के दौरे पड़ते हैं और ये ऐसी ऐसी खुराफात बातें करता है कि कोई भी औरत इसके साथ नहीं रहती, इसे छोड़कर चली जाती है। अब इसे अच्छी तरह से समझ आ गया है, एहसास हो गया है इसको कि मेरा दिल दुखाने, मुझ पर तशद्दुद करने और मुझ जैसी नेक लड़की को एक घर से उठाकर अपने अयाश खाने में लाने का क्या अंजाम होता है। मैंने सब्र किया, हर रोज़ अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने इसके दिल में खुद ही एहसास डाल दिया। कोई औरत इसके साथ नहीं रही जब से मैं इसकी ज़िंदगी में आई हूँ।
اب یہ تمہاری شادی میرے ساتھ کروا کر اس بات کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، پر مجھے لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ تمہیں کہے گا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو تاکہ اب میں دوبارہ اس سے شادی کر سکوں۔ مجھے اس کی یہی ذہنیت سمجھ آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو خاموش ہو گئی۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ قوم کتنی عیاش ہے۔ کیا واقعی میں اس بیچاری لڑکی کو ایسے ہی اٹھا کر لایا ہوگا؟ میری تو پریشانی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں تحسین بھائی کو بتا دیں۔ تحسین بھائی بولے کہ میں اس بات سے پہلے سے ہی واقف تھا۔ پہلے یہ آدمی ڈرتا تھا کہ میں کسی اردو بولنے والے آدمی کو نہ لے کر آؤں، لیکن اب یہ اپنے اس جرم سے تنگ آ گیا ہے۔ لڑکی بہت نیک ہے، تم اسے نہیں جانتے۔ اس نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی ہوگی۔ یہ آدمی خود بھی اس کی بہت تعریف کرتا ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے ایک نحوست بن کر رہ گئی ہے۔ جب تک وہ اس کے گھر میں رہے گی تب تک یہ آدمی برباد ہی رہے گا، اجڑ کر رہے گا۔ اسی لیے یہ اس کی شادی کروا کر رخصت کرنا چاہتا ہے، واپس اپنے ماں باپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا اس کے ساتھ گا کہ وہ تمہیں طلاق دینے پر مجبور نہ کرے اور جیسا صبا سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ تحسین بھائی نے جلیل سے بات کی۔ جلیل مان گیا۔ اس نے صبا کو میرے ساتھ رخصت کر دیا اور ہمیں اچھی خاصی رقم بھی دی۔ اس نے صبا کی زندگی برباد کی تھی، اسے آباد کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ صبا کے نام ایک خوبصورت گھر کر دیا۔ اس گھر میں اور صبا رہنے لگے۔ صبا کے چہرے پر اب ہنسی اور مسکراہٹ نام کی تو کوئی چیز نہیں، پر میری ماں بہت خوش ہے۔ ماں کو میں نے صبا کی کہانی نہیں بتائی، بس یہ بتایا ہے کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صبا جیسی نیک لڑکیاں آج کل زمانے میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔